Okay, so now all set, everybody, with all the discussions. Let's start with time, speed, and distance. Now, these three terms are interdependent with each other and they're connected by a ratio. And the most basic element of this chapter would be what we call as a speed. So, how do we define speed? How do we define? ओके अभी कौन कौन आए? एक दो और एक और आई ना, तो आई थी ना। हाँ, पेपर पढ़ती है, न्यूज़पेपर। हाँ, पढ़ रहे हो? और बोरिंग हो गया है। ओके, सो स्पीड, हाउ इज स्पीड डिफाइंड? स्पीड इज डिफाइंड एज द, but that is a formula for finding out speed. How is speed defined? How is that different from distance upon time? Distance covered in a given unit of time. Okay, so basically speed is a rate of change of position. That's how we understand. It is a rate of change of position. That means, let us say my position vis-a-vis anything, let's say with this, with respect to this bench is something, right? I'm after some time, let us say my position with respect to this bench changes and I reach here. So this change in position is because of something known as speed. So this change of position is because something known as speed. So, but the way you calculate, as you rightly pointed out, is given as distance upon time. Now, here distance and time are fundamental quantities. So what do we really mean by fundamental quantities? It is something which can be physically seen and measured. That is known as a fundamental quantity. So distance can be physically seen, it can be measured. So you must have general idea of distance being measured. So what would be the height of this roof, let's say? What is the height of this roof? 18. Okay, 14. What? 14 what? 10 क्या? Foot. 10 foot. Feet. So feet is plural and foot is singular. Okay. So 1 foot approximately कितना होता है? मतलब हाथ से कोई बता के दिखाएगा मेरे को? 1 foot. हाँ, वो कितना होता है? 12 इंच है? Show me. 1 inch is equal to 2.54 सेंटीमीटर. वो सेंटीमीटर कितना होता है? वो इतना कह रही है, ये इतना कह रही है, सेंटीमीटर. mm. So 1 foot should be something like this, right? So this should be around 10-11 feet, right? So inch would be something like this, and 2.5 centimeter would be, let's say, 1 centimeter would be the spin. So how do you really remember? Like this, foot is remembered by futta, जो हमें बचपन में पढ़ता था स्कूल में. नहीं पढ़ने पे, अभी तो नहीं मारते होंगे, नहीं मारते ना. स्केल होता था लकड़ी का, पीले रंग का आता था. कितने लोगों ने देखा है? हमारे टाइम स्टील में बदल गया था. हाँ, तो वो जो डंडा था. हाँ, तो so that is a futta, something like this, right? वो छोटा वाला स्केल जो ज्योमेट्री में रखते थे वो आधे फुट का होता, 6 इंच का होता था. So I'm just giving you that sense that it is a physical quantity which can actually be visualized, it can be seen, it can be measured using certain instruments. That is known as fundamental quantity. Of course, these are smaller units. The larger units happen to be your kilometer, other units being used, yards, feet, millimeter, centimeter, decimeter, so on and so forth. Similarly, time also happens to be your fundamental quantity, which can be actually experienced and measured, right? How can you measure this time? You measure the time by using watch, right? Of course, watch is a human-made device, but then you have divided that concept of time, that is the rotation of the planet Earth, into what we call as 24 hours, and the revolution around the sun, what we call as an year, which is 365 days and
5 hours 48 minutes and 11 seconds. Why? Because वो लीप ईयर में कैलेंडर में पढ़ोगे तुम कि चौथा साल लीप ईयर होता है, 100वां साल नहीं होता है, फिर 400वां साल लीप होता है, सारा जो एजेंडा है वो इसी के लिए. So the time is really, it is actually divided like this, which you can keep using what we call as a watch. How do you experience time? You experience time something like this. Let's say, it's a English class or some, or it's a good movie. You find that the time has, flown by like a fraction of a second. And the moment you are in maths class, a 2-hour class or a 1.5-hour class looks like eternity, never ending, 3 घंटे 4 घंटे बैठ गए. Same time, different feelings. So that is what you call as experience. So time can actually be physically measured and it can also be experienced. So measurement happens to be in terms of, as I told you, years, days, months, weeks, hours, minutes, seconds, and so on and so forth. That is how you measure time. So these two are basically fundamental quantity. One of those larger quantities that you use is light year. What is a light year? Light year is a unit of, हाँ मतलब वो किसका यूनिट है? या स्पीड का या टाइम का? Distance. What is a light year? A light year is the distance traveled by light in 1 year. And what is the speed of light approximately? Approximately 3 lakhs kilometer per second. हाँ मैं समझ गया तेरी बात. So that's the speed of light, and of course you know that how much time does it take for the sunlight to reach Earth? Approximately 8 minutes. What is the closest star that we have? I mean, apart from Sun, obviously. Alpha Centauri. So how far is that? 4.2 light years away. So that means light which starts 4.2 years earlier, which you may have seen yesterday evening, that is not the present, it is the past. So whenever you see the sky, you don't see the present, you see the past, and the past is possibly billions of years old. So that is how we have understood the concept of time. Now when you take the ratio of this distance and time, this concept of speed comes into play. Now if you look, the speed is essentially a ratio. It is a ratio of distance and time, and therefore it's not a fundamental quantity, it is a derived quantity. So derivation comes from the ratio. So therefore the units of speed would also be a derived quantity, because distance is fundamental quantity, therefore we have fundamental units in terms of kilometers, meters, yards, feet. Similarly, time being fundamental quantity, we understand in terms of hours, days, minutes, months, years, seconds. But speed being a ratio, you can always have your own units that can be generated. So you can generate your own units. So let us say, I mentioned the distance of speed as kilometers, meters, let's say yards, let's say feet, and so on and so forth. And in the denominator, let me say I happen to write some time in terms of hours, minutes, days, years, and so on and so forth. So the unit of speed would be it could be any possible unit. It could be kilometer per hour, kilometer per minute, kilometer per day, kilometer per year. Similarly, meters per hour, meters per minute, meters per day, meter. So any possible units can be used. Of course, from our exam perspective, there are certain units which are far more frequently and commonly used than other units. So the most commonly used units happen to be kilometer per hour and meters per, मैंने second नहीं लिखा, मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये मीटर पर सेकेंड. तो मीटर, ये दोनों सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड यूनिट है. इसके अलावा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो प्रैक्टिकली यूनिट्स दे देता है वो किलोमीटर पर मिनट दे देता है या मीटर्स पर आवर दे देता है. नाउ इफ यू लुक एट दीज एग्जाम क्वेश्चंस, apart from these commonly used units, within a question itself you will find these units, but the problem would arise when they would always say kilometers per minute or meters per hour. So these are two units which you have to be careful. Other than that, examiner is at liberty to give any unit. We cannot challenge ki aisa kyun de diya, but that is how what happens in examinations. So we should also know how do we convert a particular unit into any unit. So when we say kilometer per hour, right,
we write something like this. In our vehicles, if you will see, it is kmph. So kmph is nothing but kilometer per hour. So per is nothing but division. Kilometer means 1 kilometer. Per hour means basically 1 hour. So if a body is traveling a distance of 1 kilometer in 1 hour, we say the speed happens to be 1 kilometer per hour. That's how you understand. Now kilo is basically 1000. So you have kilogram, you have kilometer. So anything kilo basically means 1000. So when you say kilometer, so basically this is nothing but 1000 meters. Similarly, 1 hour is nothing but 1 hour can be taken as 60 minutes, right? And 1 minute can be replaced by 60 seconds. So we all know this. So I can say this becomes 60 into 60 seconds. So you can cancel these two 5s are, 2 3s are. You end up getting 5 by 18 meters per second. So what does it really mean? It means if your body is traveling 5 meters in 18 seconds, the speed happens to be 5 by 18 meters per second. In other words, what I'm suggesting that 1 kilometer per hour can always be replaced as 5 by 18 meters per second. So what I'm saying, let us say I have 9 kilometer per hour. So this basically can be taken as 9 into 1 kilometer per hour. Now this 1 kilometer per hour can actually be replaced by 5 by 18. So you have 9 into 5 by 18 meters per second. So you have 2.5 meters per second. That means whenever you have to convert kilometer per hour into meters per second, all you have to do is multiply the value by 5 by 18. That should take care of the conversion. Similarly, we can also convert meters per second. For example, this basically means 1 kilometer by 1 hour is 5 meters upon 18 seconds, right? So we can cross multiply as we did in alternando. This 18 can come up here and this 5 can come down here. So this will become 18 kilometer by 5 hours as 1 meter upon 1 second. Or I may want to say meter per second can be written as 18 by 5 kilometer per hour. Let's say I have 2.5 meters per second. So to convert into kilometer per hour, I may have to multiply it by 18 by 5, or I would want to say 2.5 can be divided by 5 by 18. So the resultant happens to be the same thing. So to convert any data which is in kilometer per hour into meters per second, you simply multiply by 5 by 18. To convert anything which is present in meters per second into kilometers per hour, you divide by 5 by 18, which essentially means multiplying by 18 by 5. So this is conversion. I'm not saying this is the only conversion. Of course, if it is given to you kilometers per minute, so let's say I am saying 9 kilometer per minute. So if you want to convert this 9 kilometer 1 minute per minute, 1 minute can be taken as 1 by 60 hours. So what does it become? It becomes 9 by 60 kilometer per hour. So 9 kilometer per minute is nothing but 9 by 60 kilometer per hour. Similarly, if you similarly we can also convert into, what did I do, per minute. तो ठीक है, तो ये 9 into 540 आ जाएगा. मैं कह उल्टा क्यों कर दिया, 540 kilometers per hour. So if a body is traveling 9 kilometers per minute, it would travel 540 kilometer in 1 hour. So the value should obviously increase. So 1 minute is 1 by 60. Then you solve it. When you take it up, you get to multiply by 60. So anything divided by 1 by 60 is nothing but multiplying by 60. And vice versa can also be done. Right. But the most important units are something like this. Let us say I have 18 kilometers per hour. So that would translate to how many meters per second? 5 meters per second. What if I were to have 36 kilometers per hour? 10 meters per second. What if I were to have 54 kilometers per hour? 15 meters per second. What if I were to have 72 kilometers per hour? So these are some of the very frequently used units in the question. So that's what I'm trying to tell you. And of course vice versa. तो ये हमें याद होना चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है. Of course 5 by 9 multiply ही करना है और आंसर आ जाएगा. So this is what we have in terms of conversion of units. यहाँ तक बात समझ में आती है? No. Now, if you look at this particular formula as we discussed, we said speed is equal to distance upon time, right? Now using the same formula, I may want to cross multiply and say distance is equal to speed into time. I may want to say time is equal to distance upon speed.
So these are all the formulas that we require. Speed is equal to distance upon time, distance equal to speed into time, time is equal to distance upon speed. So we can certainly handle our formulas in this particular fashion. Now, of course, these are no different formula, just one formula rearranged into different aspects. उससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है. Now, in this case, let us say you try to ensure that out of these three parameters, one of the parameters is constant. What does it mean? It means you see the relationship between speed, distance, and time. Let us say we fix the distance. So we have fixed the distance. That means, let us say we have to travel from Hisar to Delhi only. So the distance is always fixed. So what is the relationship between speed and time? अगर हम इसको यहाँ पे इसको फिक्स कर दें तो रिलेशन क्या दिखेगा? इनवर्सली रिलेशन. स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि अगर हमारी दूरी फिक्स है, मैं ज्यादा तेजी से गाड़ी चलाऊंगा तो कम टाइम लगेगा, और कम स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो हम ज्यादा टाइम लगे. सो स्पीड एंड टाइम बिकम्स इनवर्सली related. Similarly, let us say from here, I mean, if I say I fix the distance, I fix the speed. What does it mean? Let us say you have to travel from Hisar to Delhi, and your speed is fixed. Let's say you want to only drive at 60 kilometers per hour. You will not increase, you will not decrease. So what is the relationship between D and T? It is directly connected. So if you travel for more time duration, let's say you travel for 4 hours, you will cover more distance. If you travel for less hour, you will cover less distance. And also, if you have to cover more distance, you will have to spend more time because your speed is fixed, and you have to travel a smaller distance, and your speed is fixed. The time required would be less. So I would want to say the relationship is something like distance is directly proportional to time, provided speed is constant. Similarly, in this case, if I make time as constant, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या टाइम कांस्टेंट होगा, तो स्पीड इज डायरेक्ट, डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. व्हाट डज इट मीन? इट मींस, फॉर एग्जांपल, you have decided that you are only going to drive your car for 2 hours. Now if you drive for on a higher speed, the distance that you are going to cover will be more. Now if you are driving slowly for the same time duration, the distance would be lesser. So in case of time being fixed, distance is directly proportional to speed. Now these are 6 parameters that we are looking, but for all practical purpose, it is just one information that we are talking, that speed is equal to distance on time, and we are only trying to rearrange the 3 information in and generating 3 formulas. Similarly, the relationship that we are trying to develop between these quantities by fixing one of the variables, and then we are trying to figure out the relationship between the other 2 variables. Are we clear on this? इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हाट डज इट मीन? लेट अस से यू हैव टू ट्रैवल फ्रॉम सिरसा, कोई है वहां 6 kilometers. Oh, sorry. So you have to travel 6 kilometers. That means if you are traveling at a faster speed, the time required would be short. Why? टाइम कम हो जाएगा और स्पीड धीरे धीरे जाएगा. तो इनवर्स का मतलब होता है एक चीज कम होना दूसरा बढ़ना, या एक चीज बढ़ना दूसरा कम होना. इस कॉन्सेप्ट को हम इनवर्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं. डायरेक्ट रिलेशन होता है एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज बढ़े, एक चीज कम हो तो दूसरी चीज कम हो. तो स्पीड और टाइम का रिलेशन हमेशा कैसा रहेगा? इनवर्स रहेगा. एजम्पशन क्या है? टाइम डिस्टेंस फिक्स है. अब आप बोलो कि सर मेरे को डिस्टेंस 12 करना है तो टाइम भी तो ज्यादा ही लगेगा ना. उस केस में तो डिस्टेंस फिक्स करके हम आपस में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. Are we okay with this so far? So let us say, let's try to figure out what are the kinds of questions that we make. वो तो इसलिए तो फिर फॉर्मूला आ जाएगा ना, तो इसीलिए तो फॉर्मूला पढ़ा है. जब सारा कुछ चेंज करोगे तो फॉर्मूला यूज करोगे, एक चीज फिक्स रखोगे तो आप रिलेशनशिप यूज कर सकते हो. ठीक है. Traveling at 4/5 of my normal speed, I reach my office late by 5 minutes. What is the normal duration in which I usually reach my office? Traveling at 5/4 of my normal speed, I reach my office early by 5 minutes. What is the normal duration in which I usually reach my office?
So let's try to do this. Okay, I want you to solve this question. All the maths knowledge that is required for handling this question, I have already taught you. Okay, I have taught you all the maths which is needed to handle this question. And to repeat, the formula is written. चलेगा 4 minutes. और किसी का कोई आंसर? हाँ जी, ऑनलाइन खुशी, शिवांजलि, हाँ भाई, हाँ कितना है? हाँ जी, पीछे क्या आंसर? ये सबका 4 कैसे आ रहा है? अच्छा, ओहो 4/5। क्या, चलो बढ़िया, आ रहा हूँ मैं, देखता हूँ एक बार क्या आंसर क्या है।
Okay, now let us look at the answer for this question. I told you whatever maths was required to learn to handle this question, I have told you. So far I have only told you one formula. बाकी तो उसी का newer and newer version है. Now let us say let's understand. It's a good quality question, by the way. Why it is good quality? Because nothing is given and still he is expecting us to give a specific answer. He did not tell us the distance. He did not tell the speed with which we are traveling. He also, of course, he has to ask us the time. तो हमें distance भी नहीं दिया, हमें speed के बारे में भी नहीं दिया, बस एक relationship बोल दिया कि भाई आज हम धीरे जा रहे हैं, मतलब 4/5 of the speed से जा रहे हैं. इसका क्या मतलब है? हाँ, मतलब डेली अगर 50 की स्पीड से मैं ऑफिस आता था तो आज ब्रेकफास्ट नहीं मिला तो 40 की स्पीड से आना पड़ा. तो स्पीड कम हो गई तो उससे होगा क्या? टाइम बढ़ जाएगा. ऐसा तो नहीं है कि ऑफिस दूर चला जाएगा, वो तो फिक्स है. तो मान लेते हैं हमारा डिस्टेंस डी है, हमें पता नहीं है. लेट अस से हम रोज स्पीड से आते हैं क्योंकि वो भी नहीं पता. मान लो रोज टाइम टी लग रहा है क्योंकि कुछ नहीं दिया तो मानना ही पड़ेगा. और तो ये तो क्लियर है. तो ये जो डिस्टेंस है, कैन आई से दिस डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम? इसमें कोई डाउट है? बिकॉज एवरीथिंग इज एज्यूम्ड एंड डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम. अब पंगा क्या हुआ? पंगा ये हुआ कि जो नई स्पीड है वो 4/5s हो गई, चेंज हो गई स्पीड. उसकी वजह से टाइम भी बदल जाएगा. टाइम कितना हो जाएगा? t+5. 5 मिनट लेट, यानी अगर रोज 10 मिनट लग रहे थे तो आज 15 मिनट लगेंगे. लेट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा टाइम लगना. इसमें कोई दिक्कत है? डिस्टेंस सेम रहेगा या वो भी चेंज हो जाएगा? ये बात समझ में आती? क्या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इसमें वैलिड है या गलत हो जाएगा फॉर्मूला? क्योंकि ये फॉर्मूला यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो कैन आई से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है? 4/5s और टाइम कितना है? कोई दिक्कत है इसमें? अब ये ब्लैक वाला डिस्टेंस और रेड वाला डिस्टेंस क्या डिफरेंट है या सेम है? हम तो उसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, घर से ऑफिस की. सो कैन आई नॉट से इस डी की जगह मैं st लिख दूं तो चलेगा? st इज इक्वल टू 4/5s इंटू t+5 चलेगा यहां तक? क्या नहीं से दोनों तरफ s को कैंसिल कर दें? कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5t इज इक्वल टू 4t + 20 बनेगा.
ये 40 इधर आएगा तो 5t माइनस 40 कितना हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी आ गई 20। उसमें क्या अप्लाई करना था और क्या नहीं करना था बताओ मुझे। हाँ मैंने 4 निकाला था ना पहले। ठीक है कर सकते हैं, बताता हूँ शॉर्टकट बताता हूँ, बिल्कुल सही है। ये समझ में आ रहा है मेथड जो ये कह रही है, वो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है, ये कह रही है सर अगर स्पीड 4/5 हो गई तो जो इसका अगर स्पीड ये है तो टाइम उल्टा हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन 5/4t हो जाएगा। यानी कि 5/4 होता है 1 + 1/4 होता है, यही बात है। यानी फालतू कितना लग रहा है अपने का 1/4 हमें दे रखा है कि 5 मिनट है। किसी चीज का 1/4 अगर 5 मिनट है तो वो वैल्यू क्या होनी चाहिए 20। वो ये रहा आंसर। समझ नहीं आया छोड़ दो, रहने दो, यही करो। आ गया इसमें। अब अभी अगला वाला करके दिखाओ सही तरीके से, मुझे आंसर बताओ इसका। 95 आप सबको करने दो, निकालो आंसर। आ गया सभी का। हाँ उसको बुला, उसने सब कुछ सही करा था, काटा पीटा नहीं था, बाकी तो आ गया। चल बढ़िया। हाँ भाई इधर से क्लियर है। हाँ जी वो जो तुम 80% वाली बात कर रहे हो वो एग्जैक्टली वही है 80। हाँ बोलो बेटा। छोड़ दे उसको, मत सोच। है? 4 × 5/5 ये हो गया, ये क्रॉस पीस से इसका करेगा तो 4 बच गया, तो 5 मिनट लेगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको ना गलत है ये, थोड़ी ना कुछ होता है, ये कोई दुख नहीं। सिमिलर इसमें भी ना 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 छोड़ दो। हाँ जी डन, समझ में आ रहा है बेसिक क्लियर है। कैन आई टेक अनदर एग्जाम्पल? ओके सो लेट्स जस्ट टेक अनदर गुड क्वालिटी एग्जाम्पल। Traveling at 3 kilometers per hour from my home to office, I reach 5 minutes late. When I travel at 4 kilometers per hour, I reach my office 5 minutes early. What is the distance between home and office? ओके नहीं है इसमें। ठीक है। Once again, this is just an application of the basic formula that we have studied so far. That is, distance is equal to speed into time, and जो भी है इसके अंदर हमें आ गया। मिनट घंटे का हिसाब देख लिया था। देखता हूँ।
16.5. I just multiplied the whole. मैंने कैलकुलेट किया तो 50 देखो बच्चों ने क्या कहा, सही है। हाँ ओके आ गया, आया था पर विश्वास नहीं हो रहा था। ओके listen up now please. Okay, there are 2 or 3 ways of handling this question. I mean 2 ways primarily. देखो अगर हम 3 की स्पीड से चल रहे हैं तो 5 मिनट फालतू लगता है। ब्रेकफास्ट नहीं किया ना थोड़ा सा। ओके, if you are traveling at 3 kilometers per hour, the time taken is 5 minutes more. यही बात है। And when you are traveling at 4 kilometers per hour, time taken is 5 minutes less. So can I say time का जो फॉर्मूला है वो distance upon speed है। डिस्टेंस पता नहीं क्या ट्रेवल कर रहा है, हमें पता नहीं। जब उसकी स्पीड 3 है तो जो उसका टाइम है जो नॉर्मल टाइम से 5 मिनट फालतू लग रहा है। और जब उसका डिस्टेंस तो डी है, जब उसकी स्पीड 4 है तो जो उसका टाइम लग रहा है नॉर्मल से 5 मिनट कम लग रहा है। यही बात है। माइनस कर दो, आ गया आंसर, या जोड़ दे, कम है ना, हाँ तो ऐड कर देते हैं। माइनस माइनस प्लस, टी से टी कटेगा, 10 मिनट्स आया, ध्यान रखना। और ये किलोमीटर में है तो 10/60 कर देंगे, आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो d/3 माइनस d/4 इज इक्वल टू 1/6। एलसीएम ले लेंगे, आएगा 12, 4d माइनस 3d
is equal to 1/6, तो d is equal to 12/6 which is d निकालने की जरूरत ही नहीं है। ऑफ कोर्स कई लोगों ने d निकाला है, उन्होंने ऐसा निकाला है कि उन्होंने लिया डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड विच इज 3, टाइम इज t + 5, फिर उन्होंने लिखा डिस्टेंस इक्वल टू 4 × t - 5, ये दोनों सेम होना चाहिए। तो आपने किया होगा 3t + 15 इज इक्वल टू 4t - 20। बस ध्यान रखना ये 20 और 15 मिनट्स में है, बाकी सारा डेटा हमें पता नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये t 4t - 3t इज इक्वल टू 35 मिनट्स है, तो t इज इक्वल टू 35 मिनट्स है। तो अगर आपको d डिस्टेंस ट्रेवल करना है s स्पीड से तब टाइम 35 मिनट लगेगा, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वह या तो ये लोगे या तो ये लोगे, तो हमें डिस्टेंस निकालना है d इज इक्वल टू 3, टाइम t + 5 होना चाहिए 40, बट ध्यान रखना 40 मिनट है और ये 3 km/h है, तो इसको मिनट को आवर्स में करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर सकते हैं, ये खत्म हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो d की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब चाहे तो इस फॉर्मूले में पुट कर लेते, चाहे इस फॉर्मूले में पुट कर लेते, कैसे भी सॉल्व हो जाता, but generally you are not required to do this method, because in this method first you'll have to find out time, then you have to put back in the equation and solve it. You can directly find out the answer here. Now this will happen in the type of questions. अब यहाँ पे तो एक में 5 मिनट जल्दी, एक में 5 मिनट लेट, ये भी हो सकता था एक में 5 मिनट लेट, एक में 7 मिनट लेट, उसमें क्या होता, दोनों ऐड हो जाते, t + 5 and t + 7। ऐसा भी हो सकता था एक केस में 5 मिनट अर्ली और एक केस में 3 मिनट अर्ली, तो दोनों अर्ली दोनों लेट, एक अर्ली एक लेट, ये 3 पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं, वो आप इस इक्वेशन से हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे किया मतलब कहाँ ऐसे किया बता, ये इक्वेट किया तूने यहाँ पे 40, तो यहाँ पे t आ गया, t इज इक्वल टू, इनको जोड़ दिया 35/60 आ गया, तो t आ गया 35/60। अब डिस्टेंस या तो इसमें डालेगी, 5 थोड़ा 5/60 ऐड करना है ना, वो तो तूने आवर में कन्वर्ट कर लिया, उसमें आवर में 5 मिनट जोड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ जी, आर वी क्लियर, आर वी मेकिंग सम बेसिक सेंस सो फार, ठीक है, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया इसमें अंदर आता है वो आता है एवरेज स्पीड का, इसका आता है एवरेज स्पीड इज गिवन एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हमारा होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। क्या होता है बोलो सब लोग, so average speed is total distance upon the total time. So let us say this distance is 100 kilometers and you are traveling यहाँ पे 50 kilometers per hour से, this distance let us say is 200 kilometers and you are traveling at 20 kilometers per hour. Let us say this distance is 300 kilometers and you are traveling at 60 kilometers per hour, and this distance is 50 kilometers and you are traveling at 5 kilometers per hour. What is the average speed of this entire journey? यानी अलग अलग डिस्टेंसेस पे आप अलग अलग स्पीड से अपनी गाड़ी चला रहे हैं और ये आपकी टोटल जर्नी है, तो इस पूरे जर्नी की एवरेज स्पीड हम क्या लेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। करो 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 करो, तो देखते हैं फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो टोटल डिस्टेंस निकालो कितना है, निकाल लो, फिर करो, बिल्कुल सही है, हाँ शायद नहीं ऐसे ही हुआ था।
0.07 सल्फेटेड यूज किया। अलग अलग आ रहा है सब। 20.4 आया। हाँ हाँ भाई, तुम दोनों का चेक करूं? क्या चेक करूं? गलत कर दिया कुछ? वही आएगा जो तुम कह रही हो। ठीक है, आवाज आई थी यहाँ से। नहीं कहा था ये, कुछ नहीं कहा था किसने? हाँ जी, क्लियर है सभी का? कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके ओके, so total distance is 100 plus 200, time is 100 upon 50 plus 200 upon ठीक है, आ गया सभी का? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम्स? चलो ठीक है। आप हिसार से दिल्ली गए पढ़ने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वहां कुछ समझ नहीं आया तो भाग के आए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस एंटायर जर्नी? सुना नहीं? बात हो गई होगी तो सुनोगे ना? नहीं, आवाज तो इसलिए नहीं आ रही कि तुम्हारी आवाज आ रही है ना आपस में। So the question is, you are traveling from Hisar to Delhi at an average speed of 40 kilometers per hour, and you return from Delhi to Hisar at an average speed of 50 kilometers per hour. तो आप गए और आए, इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। जाते समय की एवरेज स्पीड बताया आपको, आते समय की एवरेज स्पीड बताया आपको, तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? इतना ही आसान होता तो मैं बाद में थोड़ी ना कराता इसको। पता नहीं।
आया? मैंने क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा। है? किसका है? किसका आंसर? तेरा? तुमने निकाला है? अच्छा, क्या है? कहाँ है? एक बात सुन, जाने की 40, आने की 50, तो एवरेज स्पीड इसके बीच में आनी चाहिए। 20/9 कैसे हो सकता है? 2 किलोमीटर पर आवर कैसे हो सकती है एवरेज स्पीड? आया होना का। यहाँ तक तो सही है, फॉर्मूला सही है, आंसर आना चाहिए। डी कहाँ गया? आ गई? अच्छा, 40 गुना में 50 कितना होता है बेटा? व्हाट इज 40 into 50? ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस कैसे निकलता है? डी क्या मानना है तो ये बता मुझे। तो टोटल कितना? वो तो एक साइड का हुआ। निकाल निकाल, कुछ तो निकाला है तूने, कुछ तो निकाला था। आंसर बता क्या है? छोटी सी गलती करिए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा ये बता। अगर हिसार से दिल्ली डी माना तो दिल्ली से हिसार आएगी नहीं आएगी? तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा? तूने डी लिखा है इसलिए आंसर नहीं आ रहा तेरा। देख न्यूमेरेटर चेक कर, समझी? हाँ, तो टोटल डिस्टेंस कितना होएगा? अब आ जाएगा। हो गया? हाँ भाई, ठीक है। 44.44। किसी की कोई समस्या? 44.44 आंसर आएगा। ओके, फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही फॉर्मूला है ना अपना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहां से आ गए, यहां से हमें पता नहीं है टोटल डिस्टेंस कितना होएगा। थोड़ी टोटल टाइम कितना होगा? जाने का टाइम कितना है? मान लो T1 कितना है? D/40। और आने का टाइम मान लो T2 कितना हो जाएगा? D/50। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? D/40 प्लस। और सारी महाभारत यही हो रखी है, किसी ने डी नहीं जोड़ा, किसी ने डी का एलसीएम गलत निकाला है, कुछ 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 डी कॉमन निकाल के 1/40 प्लस 1/50 यही बनेगा। या तो एलसीएम 40 into 50 मत करो, या एलसीएम ले लो, या 40 into 50 कर रहे हो तो 40 into 50 करो तो ऊपर 50 प्लस 40 आ जाएगा। तो ये 2 into ये कितना बनेगा? 2000। और नीचे कितना बचेगा? 90। 400/9। 1/9 कितना होता है? 100/9 कितना होता है? ये रट्टा मारा हुआ है। तो 4 into 11.11 यही था, तो कितना बन जाएगा? 44। आ रही बात समझ में? अब इसी क्वेश्चन को मान लेते हैं, जाते समय मेरी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है,
और आते समय y किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड बताओ फटाफट। जाने की स्पीड x है, आने की y है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी? कितना होगा? फिर वही गलती कर रही है। निकाल के दिखा मुझे, डिराइव कर। वेरी गुड, इसको सॉल्व कर, गलत मत करियो। पक्का? अगर मैं इसको 2x अपन x प्लस वाई बोल दूं तो, 2xy अपन x प्लस वाई बोल दूं तो सेम। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? आ गया? हाँ बेटा, इधर फर्स्ट टू रो। हाँ, आंसर क्या आ रहा है? 2xy अपॉन y प्लस x। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो सॉल्व दिस क्वेश्चन। You are traveling around an equilateral triangular park with an average speed of x kilometer per hour from one side, y kilometer per hour from second side, and z kilometer from third side. What is the average speed of this entire journey? ये x वो x नहीं है, ये x है। जी, कितने लोग का आंसर आ गया? सभी का आ गया? पता क्या नहीं आया? तो क्या समझना है मुझे बता तो दे, कहाँ नहीं समझ में आ रहा? हाँ चलो 2 मिनट लो, आप करो उसको। दिखा, तुमने निकाला नहीं निकाला? हाँ जी, वाई कहाँ से आ गया? एवरेज स्पीड निकालना है, फॉर्मूला पता है, सब कुछ दिया हुआ है, पुट करना है उसमें, पुट कर।
आएगा सबका डिस्टेंस? हाँ क्या आएगा? एवरेज स्पीड पूछ रहा हूँ ना। कैसा पार्क है ये? कैसा पार्क है ये? इक्विलेटरल। क्या होता है इक्विलेटरल? अगर ये डिस्टेंस डी है तो टोटल डिस्टेंस यहां से हमारा T1 लगना है। T1 क्या बनेगा? डी अपॉन एक्स। T2 क्या बनेगा? डी अपॉन वाई। T2 को जोड़ना है। सॉल्व करो इसको। हाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एलसीएम लेगा x इंटू वाई इंटू जेड। इसको इससे डिल कट करेगा, क्या बचेगा? वाई जेड। ये क्या बचेगा? एक्स जेड। ये क्या बचेगा? एक्स वाई। ये नीचे तो ऊपर चला जाएगा। हाँ जी बेटा समझ में आइए, हो गया। अगर ये स्क्वायर पार्क होता, ये क्या होता? स्क्वायर पार्क। और मान लेते हैं हमारी स्पीड ए बी सी डी होती, यहाँ से यहाँ ए, यहाँ से यहाँ बी, यहाँ से यहाँ सी, यहाँ से यहाँ डी। एवरेज स्पीड क्या होती? ए बी सी डी लिखना है सारे, एक एक अल्फाबेट छोड़ते चलना है। मान लो आपने ए बी सी लिखा तो डी छोड़ दिया, ए बी डी लिखा तो सी छोड़ दिया, ए सी डी लिखा तो बी छोड़ दिया, बी सी डी लिखा तो ए छोड़ दिया। ये इसकी एवरेज स्पीड है। ऐसे अगर पेंटागन होता तो 5 साइडेड फिगर होती, 5 ए बी सी डी ई होता न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ए बी सी डी ई छोड़ देते हैं, फिर ए बी सी ई छोड़ देते, फिर ए बी डी ई सी छोड़ देते, ए सी डी ई बी छोड़ देते, फिर बी सी डी ई ए छोड़ देते। कोई भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे? क्लियर है सभी को? पक्का? ओके। तो फिर अब बताता हूं मैं आपको, ये हुआ एवरेज स्पीड। इसके बाद क्वेश्चंस आते हैं ट्रेन्स के ऊपर, ठीक है? तो मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रेन है, ये एक पोल है। ट्रेन की लेंथ 300 मीटर, पोल की हाइट 50 मीटर, ट्रेन की स्पीड 3 मीटर्स पर सेकेंड। अब क्वेश्चन ये है कि ये ट्रेन इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 300 मीटर है और एक पोल है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। पोल थोड़ी दूर में है। ये ट्रेन का जहाँ एरो है ये ट्रेन का इंजन है और ये गार्ड का पॉइंट है। क्वेश्चन ये ट्रेन इस पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी?
पीछे है, मान ले मैंने 60 मीटर पीछे है, फिर अलग टाइम आएगा। क्रॉसिंग का टाइम कब शुरू होगा? तो फिर इस डिस्टेंस का क्या लेना देना है? नाउ पोल तो ऐसा है, ऐसा खड़ा है, ऐसे थोड़ा गिरा हुआ है। वो देखेंगे जब पोल गिरेगा, वो बात की बात है, अभी तो पोल नहीं गिरा हुआ। क्या कुछ हाइट से फर्क पड़ेगा पोल का? Okay, now there are few things that we need to understand. First thing is कि पोल की हाइट का क्या लेना देना है, पहला। सेकेंड थिंग इज जो इंजन है और पोल के बीच का जो गैप है उसका क्या लेना देना है। और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है उसमें तो डिस्टेंस वर्ड आता है, इसमें तो कौन सा डिस्टेंस लेना है। ये 3 समस्याएं हैं, है ना तीनों। चलो पहली समस्या, अगर पोल 20 मीटर की हाइट होती या 100 मीटर की हाइट होती, ट्रेन के चलने पे उसका कोई फर्क पड़ रहा है? तो ये तो ऐसे बुद्धू बनाने के लिए दिया हुआ है, नो पॉइंट। अब दूसरा सवाल आता है कि पोल थोड़ा दूर है, मतलब जहाँ इंजन है वहां से पोल दूर है, तो इस पोल और इंजन के बीच का जो गैप है उसका क्या करें? क्या डिस्टेंस में ऐड करें या ना करें? अब इसमें 2 सिनेरियो होते हैं। एक सिनेरियो ये होता है कि मैंने आपसे पूछा कि इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द पोल। तो क्वेश्चन इज इन व्हाट टाइम विल द ट्रेन क्रॉस द पोल। सेकंड क्वेश्चन इज right now it is 1 o'clock, at what time in terms of watch time will the train cross the pole? So there are 2 such circumstances. Now if there is no watch time available, या हम उस टाइम की बात नहीं कर रहे, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि ट्रेन पोल को कब कितनी देर में क्रॉस करेगी। अब मान लेते हैं हमारे पास कोई फॉर्मूला हमें नहीं आता और मैंने कहा कि पोल की जगह तुम खड़े हो जाओ, अभी सामने से एक ट्रेन गुजरेगी, आपको ये बताना है कि ट्रेन ने आपको कितनी देर में क्रॉस किया। तो कैसे पता लगाओगे? वो तो पता थोड़ी ना है। मान लो फाटक पे खड़ी है, स्कूटी लेके ट्रेन आएगी, मैंने कहा पता लगा भाई ट्रेन कितनी देर में क्रॉस करेगी, तो कैसे पता लगाएगी? टाइम नोट करेगी। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कब नोट करना शुरू करेगी? क्यों पीछे होगी उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्या? मतलब ये मान ली जैसे तू यहाँ खड़ी है गाड़ी लेके, ट्रेन दूर से आ रही है, तेरे को पता तो रह गया ट्रेन आ रही, तो गाड़ी चालू करेगी नहीं करेगी? मतलब तेरी नाक की सिधाई में आएगी, मतलब ऐसे तब। इसका मतलब ये है कि जब ट्रेन की क्रॉसिंग की बात हम कर रहे हैं तो क्रॉसिंग कब होएगी, कब मानी जाएगी? क्रॉसिंग तब मानी जाएगी जब ट्रेन का इंजन एकदम आपके सामने आएगा। इसका मतलब है आपके बीच में और ट्रेन के बीच में जो भी गैप है हमें कोई लेना देना नहीं इस बात का। हमारा टाइम तो तब चालू होगा जब इंजन यहाँ होगा और गाड़ी यहाँ होगा, तब चालू होगा। हमने टाइम यहाँ पे नोट किया, मान लेते हैं हमने स्टॉप वॉच लेके हम खड़े हो गए, तो जैसे ही इंजन हमारे सामने आए हमने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, थोड़ी देर के बाद इंजन आगे आ जाएगा, गार्ड यहाँ आ जाएगा, थोड़ी देर बाद इंजन और आगे आ जाएगा। हमारा जब गार्ड का डिब्बा यहाँ आएगा, इंजन का डिब्बा यहाँ होगा, तब हम घड़ी बंद करेंगे। यही बात है। अपन ने टाइम तब चालू किया था, ये इंजन को हमने बिंदी मान ली है, हमने टाइम तब चालू किया था जब इंजन यहाँ था, और हमने टाइम तब बंद किया जब इंजन यहाँ है। यानी हमने टाइम नोट किया, किस चीज का टाइम नोट किया? मान लो ये बिंदी है, इंजन इज अ बिंदी, जो टाइम लगा इस बिंदी को यहां से यहां पहुंचने में, ये डिस्टेंस का टाइम नोट किया हमने। बट व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये तो लेंथ ऑफ द ट्रेन है, क्योंकि ये गार्ड का डिब्बा है और ये इंजन है।
तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा हम लेंथ ऑफ द ट्रेन मानते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तीनों सवाल का जवाब हुआ। पहले सवाल हाइट से कोई लेना देना नहीं है, दोनों के बीच में अगर कोई गैप है तो भी उसका कोई लेना देना नहीं है, और जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो हमेशा हम डिस्टेंस मानेंगे। क्यों मानेंगे? उसका रीजन ये, अब हमें टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस की वैल्यू है 300, स्पीड की वैल्यू है 3, तो टाइम लगेगा 100 सेकेंड्स। लेकिन अगर मैंने कहा कि इंजन यहां पे है, दोनों के बीच में 60 मीटर का गैप है और इस वक्त 1 बज रहे हैं, तो ट्रेन कितनी देर में क्रॉस करेगी पोल को? क्या करोगे? अब जब इंजन यहां है तो क्या घड़ी का टाइम इंतजार करेगा कि इंजन यहां पहुंचे? घड़ी तो टिक 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 चल रही है, इसका मतलब मेरा टाइमिंग यहीं पे शुरू हो गया। और जब गार्ड का डिब्बा यहां आएगा तो इंजन यहां आएगा, और जब इंजन यहां आएगा गार्ड यहां है, तब हम टाइम बंद करेंगे। तो हमने कितना टाइम नोट किया? ये डिस्टेंस नोट किया और ये लेंथ ऑफ द ट्रेन नोट किया, ये डिस्टेंस हो गया। तो इसका मतलब है जो लेंथ या डिस्टेंस हम लेंगे वो कितना लेंगे? 300 प्लस 60, और स्पीड हमारी कितनी है? 3, तो कितना आ जाएगा? 360/20 यानी 120, सॉरी 180 है ना, 18। तो हमें टाइम कितना लगेगा? 180 सेकेंड, 2 मिनट और 30 सेकेंड, 2.5 मिनट में आप। समझ में आ रहा है? क्लियर है सभी को? तो हमें ये डिस्टेंस कब इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये समझ में आना चाहिए। घड़ी का अगर टाइम दिया है तो हमको वो डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और अगर नहीं दिया है तो। अब इसी क्वेश्चन में मान लो ये मेरी ट्रेन थी और ये जो मेरा पोल था वो नीचे गिर गया। अच्छा अच्छा, तू 360/3 विच इज 120 सेकेंड्स। अब मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रेन है, ये जो पोल है वो गिर गया, गैप है दोनों के बीच में, ये 300 मीटर है, ये 60 मीटर है, और जो पोल था 50 मीटर का था, वो जो गिर गया। ये ट्रेन इस गिरे हुए पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? सेम, कैसे? ये ट्रेन गिरे हुए पोल को कितनी देर में क्रॉस करेगी? अब बताओ, पहले तो ये जो डिस्टेंस है 60 का, इसका कोई लेना देना है? ये घड़ी का टाइम नहीं दिया तो कोई लेना देना नहीं है। टाइम शुरू होगा जब इंजन यहाँ होगा, और खत्म कब होगा? जब इंजन यहाँ होगा और गार्ड यहाँ होगा। कितना डिस्टेंस मानना पड़ेगा अब हमें? डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? 350, 300 प्लस 50, और टाइम कितना है? स्पीड कितनी है? आ रही बात समझ में? हाँ बेटा, क्या नहीं आ रहा था? बोल बोल बोल। हाँ वो ठीक है, तो समझ कहाँ से नहीं आ रहा? कहाँ पे वो स्विच ऑफ हो गया था सिस्टम? जब पोल नीचे गिर गया था, वहां से। अच्छा, वहां बंद हुआ था। तो मान लो पोल नीचे गिर गया, अब मान ले मैंने कहा अब तेरे को टाइम नोट करना है कि भाई कितनी देर में ट्रेन ने पोल को क्रॉस किया, ये क्वेश्चन है। जब इंजन यहाँ आएगा तो टाइम चालू करेगी। अब इंजन, अब ये ट्रेन ये हो गई, अभी भी टाइम चालू है, अभी भी टाइम चालू है। अब जाके टाइम बंद होगा। इंजन यहाँ, क्योंकि ये पोल की लेंथ ये है ना, तो आपने टाइम यहाँ चालू किया था और टाइम यहाँ बंद किया। कितना डिस्टेंस मेजर किया आपने? एक तो ये और एक ये तो लेंथ ऑफ द पोल है 50 और ये लेंथ ऑफ द ट्रेन है 300। सो व्हाट इज द डिस्टेंस दैट यू नीड टू मेजर? 350। स्पीड की तो पता ही है डिस्टेंस। अब इस गिरे हुए पोल की जगह क्या क्या क्वेश्चन में आता है? गिरा हुआ लड़का, लड़की, नहीं ऐसा नहीं। आप अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, so the question could be, there's a 300-meter long train which needs to cross a 500-meter long tunnel. The speed of the train is 3 meters per second. In how much time will the train cross the tunnel? कैसे करोगे? Length of the train plus length of the tunnel. तो यहाँ पे अगर ट्रेन है और ये हमारी टनल है ऐसे, तो हमारा, तो हम ये डिस्टेंस, ये हाँ ये डिस्टेंस भी लेना पड़ता। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 300, लेंथ ऑफ द टनल 500, आपको स्पीड दे रखी है 3 मीटर्स पर सेकेंड।
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 300 + 500 डिवाइड बाय 3। समझ में आ रहा है? अगर इस टनल की जगह ब्रिज होता तो ब्रिज ब्रिज पक्का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा प्लेटफॉर्म होता तो क्वेश्चन आता है 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन which crosses 1 kilometer long platform, the speed of the train is 3 meters per second, in how much time will the train cross the platform? क्या करते हैं? सेम मतलब ऐड कर देते हैं। 1 किलोमीटर की जगह क्या लिखते हैं? 1000 मीटर, तो 1000 + 300 डिवाइडेड बाय 3 है। हाँ ना, ऐसा कुछ नहीं आता। अगर ये एक दिया होता ना 1 बज रहे हैं तो टाइम यही चालू हो जाता, तो ये दूरी भी नापनी पड़ती, ये दूरी भी नापनी पड़ती और ट्रेन की लेंथ भी नापनी पड़ती। टाइम हाँ सिंपल ले लिया। ठीक है, तो अगर एक चलती हुई ट्रेन है और एक रुकी हुई ट्रेन है तो भी सेम, यानी डिस्टेंस विल ऑलवेज बी एडेड, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी एडेड। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? मुझे रिपीट करना पड़ेगा, वो आएगा तो कहेगा सर क्या था। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाता हूँ भाई, पक्का रिपीट करवाएगा। ओके, तो इसके बाद अभी हमने क्या देखा कि एक ट्रेन चल रही है और मान लो एक ट्रेन रुकी हुई है, तो चलती हुई ट्रेन रुकी हुई ट्रेन को कितनी देर में क्रॉस करेगी, उसका आंसर तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए मेरे को। एक 300 मीटर की ट्रेन है जो चल रही है, एक 200 मीटर की ट्रेन है जो खड़ी है, तो चलती हुई ट्रेन उसको कितनी देर, न्यूमरेटर में क्या आएगा, लेंथ कितनी लेगी टोटल? हाँ कितनी लेगी लेंथ? ऐड करेगी या माइनस करेगी? तो ऐड करेगी। डिवाइड में क्या करेगी? स्पीड। कितनी है स्पीड? मैंने दी। वेरी गुड। चलो, प्रॉब्लम तब आएगी जब वो नीचे आ जाएगा, तब बताओ। जब हमें दोनों बॉडीज मोशन में होती हैं तब स्पीड का अंदाजा लगाने में थोड़ा गड़बड़ होता है। वहां हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जैसे कि ट्रेन के अंदर, ट्रेन में सब लोगों ने जर्नी करी, स्लीपर क्लास में भी करी होगी पहले, अब तो नहीं करते होगे, नहीं करी है कभी? करी होगी ट्रेन में जर्नी? नहीं करी ट्रेन में जर्नी? अच्छा, अगर हम ट्रेन में कई बार ऊपर वाली बर्थ होती है, जैसे उसमें अगर हम मान लो सो रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं चल रहा होता ट्रेन चल रही है या नहीं। आवाज, हाँ ट्रेन इसी, अब क्या होता है मान लो तुम शुरू में बैठे हो तो तुम्हें पता लग जाता है कि भाई ट्रेन चल रही है, रुकी हुई है, क्योंकि वो हिलती है। मान लो तुम्हारी 2 दिन की जर्नी है, अगले दिन ट्रेन रुकी भी होती तो भी हम ऐसे ऐसे हिल रहे होते हैं, मोमेंटम। सो यू रियली डोंट नो वेदर द ट्रेन इज मूविंग और स्टेशनरी। एक तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ होगा। ये भी ऑब्जर्वेशन अगर कभी आपका हुआ है कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और मान लो दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप नॉन प्लेटफॉर्म वाली साइड देख रहे हैं और आपकी ट्रेन अचानक ही चलने लगी और आप डर गए, पापा नीचे हो तो रह गए, लेकिन जैसे ही आप प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो आपको लगता है ये तो खड़ी है ट्रेन। कितने लोगों ने फीलिंग एक्सपीरियंस करी हुई है? ना भाई ना। मैं तो स्टोरी सुना रहा था तुम्हें, कोई मैथ नहीं पढ़ा रहा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन स्टेशनरी है, हम
दूसरी एक प्लेटफॉर्म साइड है, एक नॉन प्लेटफॉर्म साइड है। कई बार हम नॉन प्लेटफॉर्म साइड में जब देख रहे होते हैं हमें ये फील आता है कि हमारी ट्रेन चल पड़ी है, मतलब एक्चुअली हमारी ट्रेन ऐसे लगता है चल गई है, और जब हम प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हैं तो हमें समझ में आता है नहीं हमारी ट्रेन रुकी हुई है। और फिर जब वापस राइट में देखते हो फिर आपका दिमाग सेट होता है कि नहीं हमारी ट्रेन नहीं, वो दूसरी ट्रेन चल रही है, लेकिन हमें फीलिंग आती है हमारी ट्रेन चल रही है, क्योंकि हम एक तो मोमेंटम में होते हैं थोड़ा सा, और प्लेटफॉर्म पे खड़े इधर से ट्रेन हमें फीलिंग देती है कि वो ट्रेन दूसरी ट्रेन चल रही है, हमें लगता है हमारी ट्रेन चल रही है, अनलेस वी लुक एट द अदर साइड। वो वाला अलग है, वो तो है जब ट्रेन के खिड़की बैठ के बाहर निहार रहे होते हैं तो ऐसे लगता है कि सब कुछ ऐसे 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 धीरे धीरे चल रहा है ना। और जैसे जैसे हम अपनी नजर क्लोज लाते जाते हैं उस वक्त हमें लगता है चीजें बहुत तेजी से चल रही है। जो दूर वाली पेड़ होते हैं ऐसे लगता है धीरे 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 ऐसे चल रहे हैं, वो जो बगल वाला पोल होता है उसको देखो तो ऐसा लगता है और तेजी से चल रहा है, और उसके नीचे जब पटरी की तरफ देखते हैं तो फिर खट 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 फिर लगता है बहुत, वो जो पत्थर मूव कर रहे होते हैं ऐसा लगता है बहुत तेजी से चल रहा है। ट्रेन की हमारी स्पीड फिक्स है, लेकिन जो हमारा परसेप्शन है स्पीड का वो वेरी करता है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है। बेसिकली इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। ये हम एक्सपीरियंस करते हैं डे टू डे लाइफ में। जब हम दूर वाली चीज देखते हैं तो ऐसे धीरे 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 ट्रेन के अंदर बहुत स्लो मूव करती है, पोल तेजी से मूव करता है, नीचे पत्थर और तेजी से मूव करते हैं। और कई बार जब ट्रेन क्रॉस कर रही होती है फिर क्या फील होता है, फिर तो खटपट खत्म हो जाती है ना। वो कुछ देर के लिए सुन हो जाता है सब दिमाग की आवाज बहुत हो रही होती है, नहीं क्रॉस। कई बार ऐसा भी होता है, ये रेयर होता है कि आप ट्रेन चल रही है और दूसरी ट्रेन आपको क्रॉस कर रही है, ओवरटेक कर रही है, आप उसको देखते हो तो आपको ये फीलिंग आती है कि वो दूसरी वाली ट्रेन भी धीरे धीरे चल रही है, जबकि आपकी भी ट्रेन बहुत फास्ट चल रही होती है, दूसरी ट्रेन आपको ओवरटेक कर रही होती है। ये रेयर होगा, आप लोगों ने कम देखा होगा बिकॉज यू वुड हैव ट्रैवल्ड लेस, बट ये होता है। Now this all concepts are basically of concept of relative speed. Now why we need to study, और कहाँ से आया ये concept? ये इसलिए आया कि everything is in motion actually. हम सब चल रहे हैं। For example, जब हमने क्लास शुरू करी थी और अब जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो हमारी पोजीशन हम कितनी दूर आगे होंगे? कई लाख करोड़ किलोमीटर हम दूर हैं। When we started this class and this point of time, क्यों? We are not only rotating on our axis ऐसा, we are also revolving around the sun. And it is not that our solar system is stationary. Our solar system itself is moving around our galaxy. And it is not that our galaxy is stationary. Our galaxy itself is moving somewhere we don't know. So if you look at the frame of reference of this universe, our position when we started this class vis-a-vis right now has changed dramatically. Billions and billions of kilometers we have moved because we are moving so fast. But in this situation, sitting in the class, it is like you are stationary, I am stationary. But in reality, we are actually traveling very, very fast. To figure this out, how fast are we moving? There is no mathematical solution or physical solution. So the scientists and mathematicians devised this method of relative speed, where they said, let us assume one of the moving body to be stationary. Let us assume one of the moving body to be stationary. Let us say we want to find out whether a particular star or moon are moving away from us or closer from us. So what do you assume? You assume, let us say, Earth is stationary. With respect to Earth, you are trying to figure out the speed of every other body, so that we are able to understand whether we are moving towards some star or the star is moving towards us. I mean, you would have studied its blue shift and red shift, because if you travel farther, the wavelengths of the light which will reach us will increase, and therefore it will be a red shift. And if it's moving further, so विबग्योर के अंदर जो वेवलेंथ कम होती है, शॉर्टर वेवलेंथ वो होती है विजिबल वाली, उसके पहले विबग्योर सुना होगा, तो वो वायलेट ब्लू, उसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं. And that is how this entire concept of relative speed came into being. So how is this situation related to us in terms of maths and in terms of questions being asked in the examination?
And how is it related to us for all practical purposes? For all practical purposes, relative speed is the speed with which relatives run away when you ask them money. Could be a relative speed, but then, okay, so that was a joke which most of you did not understand. So let's just take an example. How would you use this, concept of relative speed for us to solve a question? So let's just take an example and I'll illustrate, some more examples to help you understand this idea of relative speed. Let us say there are two friends, you are in Hisar and your friend, ex-friend, whatever is in Faridabad. Let's say the distance between the two cities is 200 kilometers and you want to meet each other and therefore you are traveling towards each other. So you are moving towards Faridabad, your friend is moving from Faridabad towards Hisar. Now your speed, let us say, happens to be 30 kilometers per hour and your friend's speed, suppose, happens to be 20 kilometers per hour. That is the situation. So you two people are there at different points and you both are moving towards each other and there is a distance which is known to us. So the first question that can be asked is, after how much time will you two people meet? That is the first question that can be asked. The second possible question is, at what point from Hisar would you guys be meeting, or at what point from Faridabad would you guys be meeting? So these are two possible questions that we have. Now, in reality, what happens is this. After 1 hour, you would be 30 kilometers from Hisar and your friend would be somewhere 20 kilometers from Hisar. So together you would have covered, one person would have covered 30, you would have covered 20. Similarly, you would have covered another 30 and he would have covered another 20. So you covered 60, he covered 40. In another 1 hour, you would have covered 30 and he would have covered 20. In another 1 hour, you would have covered 30 and your friend would have covered 20 and you would have met, right? So हो क्या रहा है? दोनों लोग हैं, 1 घंटे बाद ये 30 चला, ये 20 चला, 50 हो गया, कम हो गया. फिर ये 30 चला, ये 50 चला, 2 घंटे हो गए, 100 किलोमीटर कवर हो गया. फिर ये 30 चला, ये 50 चला, अनदर 50 किलोमीटर कवर हो गया. फिर ये 30 चला, ये 50 चला, अनदर 50 किलोमीटर कवर हो गया. यानी पहले घंटे में दोनों ने मिलके 50. हम इसी ज्ञान पे पहुंचने वाले. So the point is that two people are moving together, and if you consider what is happening after every hour, you would realize that after 4 hours they have met, and this person would have traveled 120 kilometers and this person would have traveled 80 kilometers. So you would be meeting at 120 kilometers from Hisar or 80 kilometers from Faridabad, and you will be meeting after 4 hours. But of course this we cannot do sitting in the examination कि हाँ ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ऐसे ऐसे सेटिंग बिठाएंगे तो नहीं होगा. तो इसको हम रिलेटिव्स के कॉन्सेप्ट से किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, ऐसे हिसार फरीदाबाद, the distance is 200. Now in this case you are moving towards this direction 30 kilometers per hour, he is moving 20 kilometers per hour, something like this, right? You would say to your friend कि भाई ऐसा है, तू रुक जा, तो अपनी स्पीड 0 कर ले, तू मत चल. तुमने बोला कि तुम मत चलो, मैं आता हूं तुम्हारे पास. तुम खुद तो 30 किलोमीटर चल रहे थे, उसका जो 20 किलोमीटर वाला काम था वो किसको करना पड़ रहा है? वो भी तुमको करना पड़ रहा है. तो तुमको टोटल कितना काम करना पड़ रहा है? 50 मिनट. इसका मतलब है दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड. जब आप अपने फ्रेंड की फाइल बनाते हो तो अपनी भी तो बनाते हो ना, सबमिट करने के लिए. खुश हो रहा है, कितनी बनवाई है? 2 बनवाई है, सारी बनवाई है, ठीक है, ओके. सो आपकी स्पीड कितनी हो गई? 50 किलोमीटर पर आवर. अब ये रिलेटिव स्पीड होगी. कितना डिस्टेंस कवर करना है आपको? 200. अब फॉर्मूला तो पता है, ये टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? 200. स्पीड कितनी है? तो टाइम कितना लगेगा? यही हमने आंसर निकाला था. बट ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहां पे आप एज्यूम कर रहे हो कि सामने वाला नहीं चल रहा है, बट सच्चाई में वो भी चल रहा है.
तो अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम हिसार निकालना है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। आपकी एक्चुअल स्पीड कितनी, 30, कितनी देर तक चले, 4 घंटे, तो डिस्टेंस कितना आ गया, 120। अगर हम डिस्टेंस फ्रॉम फरीदाबाद निकालेंगे तो डिस्टेंस यानी इधर से डिस्टेंस निकालेंगे तो इसकी स्पीड कितनी है, 20, कितना टाइम, 4, कितना 80। सो दैट इज हाउ यू गेट an answer. So whenever two bodies are moving in the opposite direction, whenever two bodies are moving in the opposite direction, the speeds will always be added. जब भी दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड हमेशा, ये रहा ना, टाइम आ गया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो क्योंकि किस पॉइंट पे मिलेंगे वो रेफरेंस देना पड़ेगा, ए वाली साइड से या बी वाली साइड से, ये तो नहीं पता। हाँ, उसकी स्पीड ले लो, स्पीड इनटू टाइम कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही बात? Whenever two bodies are moving in the opposite direction, speeds is added, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। What happens when two bodies are moving in the same direction? Let us try to take an example and understand that. मान लेते हैं आपकी क्लास शुरू हुई 12 बजे और खत्म होगी 2 बजे। खुश हो गई देख। जब 12 बजे क्लास शुरू हुई, आपका पुराना फ्रेंड आपकी बाइक को घुमाने के लिए ले गया, ठीक है। 2 बजे आपको पता चला कि बाइक घूमने गई हुई है, ठीक है। अब वो जो बाइक घूमने गई हुई है उसमें आपने स्पीड गवर्नर लगा रखा था, जिसकी वजह से उस बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर थी। आ रही बात समझ में? तो 2 बजे आपको पता चला कि वो घूमने गई है 60 किलोमीटर पर आवर, आपको भरोसा नहीं हुआ तो आप उसके पीछे भागे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भागे मतलब बाइक लेके भागे, ठीक है। आप चेस कर रहे हो, क्यों? क्योंकि पहले भी आप ये काम किया करते थे, फिर पुर्जे नहीं मिलते थे। आपको पता है वो कहाँ जा रहा है, ये assumed है, कहाँ जा रहा है आपको पता है, ठीक है। सिचुएशन ये, तो 12 बजे आपकी क्लास शुरू हुई, 12 बजे कोई ले गया घुमाने, 60 की लिमिट थी, एज्यूमिंग वो फास्टेस्ट चला रहा है, मैक्सिमम दूर भगा रहा है, आप उसको चेज करोगे 80 की स्पीड से। अब 2 क्वेश्चन बनेंगे, आप उसको कितने बजे पकड़ोगे, पहला सवाल, और दूसरा सवाल आप उसको कितनी दूरी पे पकड़ोगे, ये 2 सवाल बनेंगे। अब हो क्या रहा है इसमें, हो ये रहा है, मान लेते हैं 2 बजे की सिचुएशन क्या है, जो आपकी बाइक है वो दूर है, कितनी दूर होगी? 2 बजे आपकी बाइक आपसे कितनी दूर है? 120 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि 60 की स्पीड से आप चल सकते हो और वो 2 घंटे तक भागता रहा, तो अब दोनों की स्पीड कितनी होगी? ये सिचुएशन है। अब वो भी भाग रहा है, आप भी भाग रहे हो, होगा क्या? ये गैप है, दोनों 120 का गैप है, आप तेज भाग रहे हो, तो ऐसे धीरे 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 ऐसे ऐसे करते 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 उसको कहीं ना कहीं पकड़ लोगे, ऐसे ही पकड़ा जाएगा, ये तरीका है। एक गैप है, ये भी चल रहा है, आप भी चल रहे हो, भागते 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 डब्बू कर दोगे आप उसको, ठीक। हाँ, अब सिचुएशन ये है कि आप उसको कितनी दूरी पे पकड़ोगे और कितनी देर बाद पकड़ोगे। अगर हम फिजिकल सिचुएशन दिखाएं तो फिजिकल सिचुएशन ये है कि 2 बजे 120 किलोमीटर की दूरी पे हो, 3 बजे अगर हम उसको चोर बोल दें एक बार के लिए, तो कितनी दूर चला गया वो पुराना है ना, मतलब सबके लिए चोर है, तुम्हारा तो दोस्ती है, तो 180 हो गया। आप कहां पहुंचोगे 3 बजे? 80 पे। आप कहां पहुंचोगे? 80 किलोमीटर पे। टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहे हैं। फिर 4 बजेंगे, चोर कहां पहुंचेगा? 60 किलोमीटर और भागेगा, कितना चलेगा? 240। आप कहां पहुंचोगे 4 बजे? 160 पे। समझ में आ रहा है? 160 पे 4 बजे, यही। फिर 5 बजे थीफ कहां होगा? मान लो ये 5 बज रहे हैं, कितने 60 से भाग रहे हैं ना, तो 300 पे। और आप कहां पे होगे 5 बजे? यानी यहाँ पे आ जाए। आप समझ में आ रहा है? गैप कम होता जा रहा है,
240 पे। फिर 6 बजे कहाँ पहुंचेगा वो? 360 पे। आप कहाँ पहुंचोगे 6 बजे? 80 चल रही है ना, तो 320 पे, 320 पे पहुंचोगे 6 बजे। 7 बजे कहाँ पहुंचेगा चोर? 420 पे। और आप कहाँ पहुंचोगे 4 बजे? 7 बजे आप पहुंचोगे 400 पे। 8 बजे कहाँ पहुंचेगा चोर? 480 पे। और आप कहाँ पहुंचोगे 4 बजे, 8 बजे? 480। पकड़ लोगे इसको? तो कितने बजे पकड़ा आपने? 8 बजे। और कितने डिस्टेंस पे पकड़ा आपने? रोड तो सड़क तो स्टेशनरी होती है। अभी करेंगे, आएंगे आएंगे। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट है, अभी करवाऊंगा, चिंता ना करो। ये कह रहा है कि सर नहीं 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 वो एलसीएम निकाल रही है। आगे भी आएगा, 960 पे भी तो आ जाएगा कॉमन, पिक्चर में भी तो आएगा। हाँ हाँ लीज, ओके। वो जो एक तेरा क्वेश्चन है ना, वो हम करेंगे। वो ये क्या, मान लो वो जो ये कह रहा है कि जिम रोड चल रही है, रोड चलने का मतलब है मान लो 2 ट्रेन चल रही हैं ऐसे, और 2 ट्रेन पे हीरो हीरोइन भाग रहे हैं ऐसे एक दूसरे को, छैया छैया करना है। कितनी देर में करेंगे, यही क्वेश्चन हो सकता है। एक ही बात है भाई, एक ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के ऊपर वो भाग रहा है, शाहरुख खान वाली है ना, हाँ। वो ट्रेन चल रही है, ट्रेन के ऊपर बंदा भाग रहा है, इधर से ये ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन के ऊपर बंदा भाग रहा है, और दोनों को मान लो हाथ मिलाना है, तो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ना। हाँ उसको भी करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं क्योंकि ये इसका बेसिस है। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज हैपनिंग दैट यू आर एबल टू कैच एक्स फ्रेंड vis-a-vis thief or whatever at a distance of 480 kilometers and at 8 o'clock, 8 बजे। कितने बजे के बाद कितने घंटे लग गए आपको पकड़ने में? 6 घंटे लग गए। अब इतना मेहनत करने की बजाय हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे कि इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे रिलेटिव स्पीड से। जग गई? 12 बजे। तो जब 2 बज रहे हैं तो थीफ की पोजीशन कितनी है? 120 किलोमीटर है ना, और वो इधर भाग रहा है और आप उसको चेस कर रहे हो। लेटर से वो 80 की स्पीड से भाग रहा है, सॉरी 60 की स्पीड से भाग रहा है, और आप उसको चेस कर रहे हैं 80 की स्पीड से। यही सिचुएशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ हाउ वुड यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? एज आई टोल्ड यू, रिलेटिव स्पीड का मतलब हम एक बंदे की स्पीड को स्टेशनरी मान लेंगे। तो आप उसको क्या बोलोगे कि देख मैं तेरे को पकड़ तो लूंगा ही, तो क्यों भाग रहा है भाई, मत भाग, तू रुक जा। हाँ मतलब वो तू रुक जा, क्योंकि तू रुक गया है इसलिए मैं तेरे को धीरे धीरे पकड़ूंगा। अरे क्यों पकड़ूंगा धीरे धीरे? क्यों? क्योंकि आप रुक गए उसके कहने पे। दैट मीन्स इसने अगर अपनी स्पीड 60 कम कर दी है तो आप उसकी एवरेज में अपनी स्पीड भी 60 कम कर रहे हो। तो अगर वो रुक गया है तो आपकी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई? 20 किलोमीटर पर आवर। अब चूंकि वो रुका हुआ है तो गैप तो बढ़ेगा नहीं, तो डिस्टेंस कितना है हमारा? 120। स्पीड कितनी हमारी? 20। तो टाइम कैसे निकालोगे? 120 by 20, 6 घंटे, यही निकाला था हमने। 6 घंटे बाद उसको पकड़ लोगे, क्वेश्चन खत्म। दैट्स ऑल, सिंपल। अब डिस्टेंस निकालना है, कहां पकड़ा? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। कौन ना रुके? यहाँ पे अच्छा यहाँ पे क्यों रुकेगा? अच्छा मैंने सोचा यहाँ क्यों रुकेगा, वहां तो धक्का मार के गिरा देगी तेरी बाइक है। हाँ, हाँ।
तो जो रिलेटिव कंडीशन होती है वो एक एज्यूम्ड कंडीशन है जहां पे हम किसी एक को स्टेशनरी मान रहे हैं, ठीक है, वो रुकेगा नहीं, असली में नहीं रुकेगा। इसीलिए जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम है, तो क्या हम इसमें स्पीड 20 लेंगे? नहीं, क्योंकि वो रुका थोड़ी ना, वो तो चल रहा है ना। कितने से चल रहा है? आप कितने से भाग रहे हो? 80 की स्पीड से। और कितनी देर तक भाग रहे हो? 6। तो डिस्टेंस कितना लगाएगा? 480। हाँ, अगर आप चोर की स्पीड मानते हो, चोर की स्पीड 60, तो चोर कितनी देर तक भाग रहा है? 8 घंटे। 2 घंटे पहले से भाग रहा है ना वो, 8 घंटे। तो डिस्टेंस सेम आना चाहिए, कैसे भी कर लो। हाँ, उस केस में आपको ये करना है कि जब भी दो बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड्स हमेशा ऐड होती है, और जब दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो स्पीड हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है। ये ध्यान रखना है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अगली क्लास में हम ये देखेंगे कि अगर आपकी चोरी वाली यारी पुरानी हो गई है तो आपको पता नहीं होगा कहाँ भाग रहा है। उस केस में हम डायरेक्शन नहीं पता, फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे पकड़ना है, वो अगली क्लास में देखेंगे। हाँ, शाहरुख खान वाला उसके बाद आएगा। इफ आई एम नॉट ट्रैवलिंग ऑन मंडे रख लेते हैं। हाँ, ले आना। ठीक है खुशी, कुछ पूछना समझना है? नो सर। चलो ठीक है बेटा, देन थैंक यू।